اپنے اپنے پریوار کی طرف سے عید کی ساری مبارکباد اپنے سارے دیش واسیوں کو دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اپنے دیش میں ایسے ہی امن بھائی چارہ خوشحالی ہمیشہ رہے، آپس میں سب لوگ مل کے دوسرے کے ساتھ ایک ساتھ ہم لوگ ہمیشہ چلیں اور سب کو اوپر والا سرکشت رکھے، یہی میرے اوپر والا شکریہ۔ عید مبارک۔ دیش واسیوں کا بس پورے بھارت کی طرح آج ضلع غازی پور کے محمد آباد تحصیل کے انترگت عیدگاہ کے میدان میں آج سانسد افضال انصاری اور محمد آباد کی ودھائک شعیب انصاری، پورو ودھائک حاجی صفت اللہ انصاری کے ساتھ ساتھ کرز جوار کی کافی سنکھیا میں آس پاس کے گاؤں کے لوگوں نے بھی آج بہت ہی اطمینان کے ساتھ عید الفطر کی نماز ادا کی۔ جامع مسجد محمد آباد کے پیش امام شاہجہاں صاحب کے لڑکے حافظ خورشید عالم نے نماز عیدین پڑھائی، وہیں علامہ شبلی صدیقی نے نماز کے بعد خطبہ عید اور دعائیں سارے جہاں میں امن اور قانون کا راز قائم کرنے کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ اس اوسر پر خصوصی طور پر ضلع غازی پور کے سانسد افضال انصاری، محمد آباد کی ودھائک شعیب انصاری عرف منو انصاری اور پورو سانسد صفت اللہ انصاری نماز عیدین پڑھنے کے بعد لوگوں سے گلا خوب ہی پیار کے ساتھ مل رہے تھے۔ آج تو ایسا بھی دیکھا گیا کہ افضال انصاری پورو ودھائک صفت اللہ انصاری عیدگاہ میں نمازیوں کو ترغیب کو لائن سے بٹھانے کے لیے خود لائن لگانے کے لیے کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا اور ایک امن کا پیغام دیتے ہوئے پورو ودھائک صفت اللہ انصاری نے عید کی نماز سے پہلے ایک بہت ہی دل کو جھنجھوڑ دینے والی اپنے خطابت سے نوازا اور نوجوانوں کے دھڑکن ودھائک شعیب انصاری نے لوگوں سے ملنے کے بعد مل رہے تھے۔ نماز عیدین کے بعد لوگ اپنے عزیز آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کا زمانہ بڑے غور سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کرتے ہیں۔ سچ یہی ہے مر کے بھی انسان وہ مرتے نہیں، یاد کرتا ہے زمانہ جن کو مر جانے کے بعد سمجھ آئے؟ سب پہ ہے اسی طرف سے سب کے الگ الگ جو موضوع یہ ہے۔ الطاف حسین صاحب یہ موضع یہ قاضی پور سراج ہے، قاضی پور سراج اور چک یوسف میں دونوں یہ الطاف حسین صاحب، اور الطاف حسین کے والد کا نام سلیمان انصاری صاحب۔ اچھا، تو کیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ محمد قاسم میرے دادا، اچھا، اور ان کے والد کا نام محمد عباس، وہ نیچے حضرت عباس، یعنی ہمارے والد سبحان اللہ انصاری، ان کے والد قاسم انصاری، ان کے والد عباس انصاری۔ جیتے جی قدر و بشر کی نہیں ہوتی پیارے، یاد آئے گی تمہیں میری وفا میرے پاس۔ یہ ہیں محمد مصطفیٰ انصاری، آن ریڈی مجسٹریٹ، جو سلیمان دادا کے فرزند تھے۔ مصطفیٰ انصاری یعنی خالد چچا کے دادا، اور ان کے والد سلیمان انصاری۔
1946 की वफात है। 46 खूबी बख्त ताबीर रहेगी बाकी, खूबिए बख्त की ताबीर रहेगी बाकी, हम नहीं होंगे ये तस्वीर रहेगी। हाँ, ये तो ये बशीर अंसारी हैं, उमर दादा के वालिद और उनके वालिद सुलेमान अंसारी। यहाँ देखिएगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के भी वालिद सुलेमान अंसारी और बशीर अंसारी के भी वालिद सुलेमान अंसारी। जी हाँ, ये तो होता है। हाँ, मतलब दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। मोहम्मद मुस्तफ़ा मोहम्मद बशीर भाई। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा से सिलसिला जो है वो खालिद अंसारी और उसके बाद जावेद अंसारी। अब बशीर दादा से जो सिलसिला है वो उमर अंसारी, फारूक अंसारी। तो इसमें कहते हैं इसी मरीज़ इश्क में मुर्दा न जाएंगे, हैं मरीज़ इश्क में मुर्दा न जाएंगे। इश्क हैं, मुर्दा न जाएंगे। हाँ नहीं, उसके पहले है उसी मरीज़ इश्क हाँ, में उसी मरीज़ मुर्दा न जाएंगे, हर कर मिली है मरकर मिली है जिंदगी जावेदा मुझे। मतलब हाँ, मरने जिंदगी रहने वाली, जिंदगी जिंदा रहने वाली। और ये सब हैं लोग। जी हाँ, ये काजी विष्णु साहब का मज़ार को हम जाते हैं। काजी ये अम्मी जान है हमारी, तो अम्मी जान। लेकिन अब ये ज़ोहरा बेगम और उसके बगल में जमाल बेगम, उसके बगल में जमाल बेगम क्या जमालपुर ही नहीं के नाम देगा? ये खुर्शीदुल हक। जमालपुर जी बताओ। अब ये चल रहा है वो ठीक है। अच्छा, उनके हाँ। अब इसमें आ जाएंगे उमर फारूक और ब्रिगेडियर उस्मान वाले खानदान का। चीज़ों की कब्रगाह में भी जा कर के उनकी फातिया पढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ देखा गया कि मोहम्मदाबाद के विधायक शुएब अंसारी एवं पूर्व विधायक सिबतुल्लाह अंसारी एवं सांसद गाज़ीपुर अफजाल अंसारी आज अपने ख़ानदानी कब्रगाह में पहुंचकर फातिया पढ़ी और साथ ही साथ इस यूसुफपुर कस्बे को बसाने वाले उनके ख़ानदान के लोगों की मज़ारों के साथ साथ ये भी बता रहे थे पूरे अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों के लगभग 13-14 लोगों की पूरी तारीख़ भी बताया उन्होंने और अपने बुज़ुर्गों के लिए फातिया भी पढ़ते हुए लोगों के जो मोरिस थे उन मोरिसों के नाम के साथ साथ अल्लामा इकबाल के उस चुनिंदा अशार भी लिखे हुए थे जो दिलों को काफ़ी झिझोड़ रहे थे और एक पैगाम दे रहे थे। इस खामोश में आने के बाद इन कब्रगाहों के सामने जो तख्ती लगी हुई है उन तख्तियों में जो अशार लगे हुए हैं ख़ास तौर पे डॉक्टर अल्लामा इकबाल के जो पूरी एक तारीख़ मोहम्मदाबाद के साथ साथ इन वारिसैन का भी एक तारीख़ पेश कर रहा था। देखा गया कि यहाँ पे अफजाल अंसारी के वालिद मोहतरम सुभानुल्लाह अंसारी की भी कब्रगाह मौजूद है जो नगर पालिका मोहम्मदाबाद के अपने कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए अपनी ज़मीन को भी गिरवी रख दिया था। ऐसे भी लोग थे ये काजी हजरात जो अपने लोगों के मुहाफ़ज़त के लिए उनके ताउन के लिए हर तरह की कोशिश करते रहते थे। इसीलिए इतना बड़ा कस्बा यूसुफपुर बसा हुआ है और इसकी एक इतिहास है और इस इतिहास को जानने के लिए इस खामोशा
जो इनके अफजाल अंसारी के आबाई कब्रिस्तान है, ये आकर देखने की ज़रूरत है। किस तरह से अच्छे अच्छे पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, फल के पौधे भी लगे हैं, फूलों के पौधे भी लगे हुए हैं। चारों तरफ इसकी देखभाल अलग ढंग से होती है। सही मानों में असली घर तो यही है। सभी लोगों को इस घर की हिफाजत करनी चाहिए। अक्सर लोग अपना महल तो खूब शानदार बना लेते हैं, लेकिन कब्रिस्तानों पे ख्याल नहीं किया जाता है। लेकिन अफजाल अंसारी के परिवार, उनके ख़ानदान के लोगों ने अपने आबाई कब्रिस्तान को किस तरह से संवारा है और उसे संवारने की हर कोशिश करते रहते हैं, यह भी एक बहुत बड़ी नसीहत है। इस कब्रिस्तान में आकर देखने के बाद हमें मिलता है। और हर कोई मुसलमान को चाहिए कि अपनी कब्रिस्तान को बहुत ही साफ़ सुथरे के साथ फूलों का बागीचा लगाकर एक जन्नतनुमा इस कब्रिस्तान को बनाना चाहिए, क्योंकि आखिरी उम्र में आखिरी घर ता क़यामत तक तो यही रहेगा। इसलिए इस पे ख़ुसूसी तौर पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अफजाल अंसारी जब फाटक में पहुंचते हैं तो वहाँ भी लोग उनसे मिलने के लिए भीड़ लगी रहती है और किस तरह से अपने लोगों से मिलते ये दृश्य देखने के लायक होती है। G22 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट है। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दरगुजर फरमा, जो मकरूज हैं उनकी कर्ज की अदायगी नसीब फरमा। गफूर रहीम, हम तेरे दरबार में आज हाथ फैलाए हुए हैं। आज मांगने का दिन है गफूर रहीम, आज हम मांग रहे हैं, तुझे हाजिर नाज़िर समझ कर मांग रहे हैं। हम ईमान वाले हैं, हमारे दिल में तेरा अकीदा है, आखिरत का यकीन है। गफूर रहीम, आज जो पूरी दुनिया जिस हालत से गुजर रही है तू उसे देख रहा है। गफूर रहीम, हम सब मुसलमान भाइयों पे गफूर रहीम कैसे कैसे जुल्म तशद्दुद बढ़ते जा रहे हैं। गफूर रहीम तुझसे छुपा नहीं है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है। गफूर रहीम तू सबको देख रहा है। हमारे बागा सारे मुसलमानों को गफूर रहीम नाहक उन्हें मारा जा रहा है, उन पे जुल्म किया जा रहा है। गफूर रहीम, हम सब में रहम करम का मामला फरमा और दुश्मनान इस्लाम की हलाकत और बर्बादी नसीब फरमा। गफूर रहीम,